Okay, uh, so we'll start. Today is the revision session for chapter number 5, 8051 memory, input output devices interfacing and application. This chapter is for 12 marks and there are only 4 to 5 questions which are going to be asked from this chapter that we are going to discuss now. Okay, so what is meant by interfacing first that we are going to discuss. So in this, the first point is memory interfacing. We already discussed there are two memories. One is the RAM memory and second one is the ROM memory. ROM memory is also called as your program memory and RAM memory is called as your data memory. So if you want additional memory which is more than the actual memory which is available inside the 8051 microcontroller, then we need to connect external memory to the 8051. That is called as interfacing. Interfacing means what? Connecting input output devices and external memory to the 8051 by means of certain wires and connection is called as interfacing. Okay, then IO interfacing, input output interfacing, in which we are going to discuss how LEDs are going to interface with 8051, then relays are going to interface with 8051, keyboard is an input device, how to interface it keyboard to the 8051, LCD, liquid crystal display, 7 segment display, stepper motor and DC motor. Then how to generate the square wave on the some pin of 8051 that we are going to discuss. Then we are going to discuss the water level controller, design of water level controller using 8051 microcontroller. Then stepper motor control for clockwise and anti-clockwise direction. And the last one is the traffic light controller. So in the exam, as this chapter is for 12 marks, but actually the questions which are asked in the exam for 18 marks. Okay, along with options. Okay, and the questions may be related to your interfacing of LED, 7 segment display, keyboard, LCD, or your stepper motor, water level controller. These are commonly asked question in the exam. So we'll start now. What is interfacing? Interfacing a microprocessor or a microcontroller is necessary to connect it to the various input output devices, memory unit and other peripherals. मतलब क्या होता है कि जब भी मैं कोई माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करता हूँ या माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करता हूँ तो किस लिए यूज़ करते हैं? कुछ एप्लीकेशंस बनाने के लिए. तो उसमें हमें ना कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कुछ मेमोरी लगाना ज़रूरी होता है. जैसे आप एग्जांपल लेंगे रिमोट कंट्रोल. सो टीवी का जो रिमोट है उसके अंदर एक प्रोसेसर है, उसके साथ में आपने कीपैड जो है अलग अलग कीज़ उसके साथ में इंटरफेस की है. ओके, अगर आप दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल ले सकते हैं. उसमें प्रोसेसर है, उसके साथ में आपने डिस्प्ले कनेक्ट किया है, माइक्रोफोन कनेक्ट किया है, कीपैड कनेक्ट किया है. ओके, और अलग अलग सेंसर कनेक्ट किए हैं अपने एप्लीकेशन के हिसाब से. तो जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेसिंग. इज इट क्लियर? This interfacing allows the microcontroller or microprocessor to communicate with control external components, enabling it to perform wide range of task and function. जब हम लोग कुछ इंटरफेस करते हैं इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस, तो उसकी वजह से अलग अलग काम वो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर कर सकता है. ओके, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन में देखा होगा, माइक्रो प्रोसेसर रहता है उसमें, उसको आप लोग डिस्प्ले कनेक्ट करते हैं, उसको आप लोग अलग अलग सेंसर्स कनेक्ट करते हैं, माइक कनेक्ट करते हैं, स्पीकर कनेक्ट करते हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग काम करना चालू कर देता है. इंटरफेसिंग इज इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ कंप्लीट फंक्शनल सिस्टम as it allows the microprocessor or microcontroller to interact with the outside world and carry out its intended operation. इंटरफेसिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मुझे एक पूरी सिस्टम बनानी है, कंप्लीट फंक्शनल सिस्टम अगर बनानी है तो मुझे उसके साथ में कुछ अलग अलग सेंसर्स लगेंगे और अलग अलग आउटपुट डिवाइसेस एक्चुएटर लगेंगे, उससे मैं पूरी सिस्टम बना सकता हूँ. ओके, सो अभी देखते हैं इंटरफेसिंग ऑफ मेमोरी. मेमोरी को कैसे इंटरफेस किया जाता है? Okay, how we are going to interface the memory.
सो 8051 में कौन सी मेमोरीज अवेलेबल है, कितनी मेमोरी है 8051 में इंटरनल मेमोरी? वेदांत? In 8051 we have two memories. One is your RAM and one is your ROM. Okay, so जो RAM है 8051 में दो मेमोरी है. एक है RAM जो है 128 के, सॉरी 128 बाइट. ओके, और दूसरी है ROM जो है 4 किलो बाइट. ओके, अब ये जो मेमोरी है ROM मेमोरी किस लिए यूज़ की जाती है? जो मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, वॉट एवर माई प्रोग्राम, टू स्टोर द प्रोग्राम आई एम गोइंग टू यूज़ द ROM मेमोरी. ओके, प्रोग्राम स्टोर करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ ROM मेमोरी. लेकिन अगर मेरे प्रोग्राम की साइज़ 4 किलोबाइट के ऊपर है, जो प्रोग्राम मैंने लिखा है उसकी साइज़ 4 किलोबाइट के ऊपर है, तो मैं मेरे 8051 की जो इंटरनल मेमोरी है उसमें प्रोग्राम नहीं स्टोर कर सकता. मुझे एडिशनल मेमोरी उसको कनेक्ट करनी होगी. तो जो एडिशनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी हम 8051 को कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं इंटरफेसिंग. ओके, सो इंटरफेसिंग जो करते हैं ना, सो एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू कनेक्ट द एक्सटर्नल मेमोरी और डिवाइसेस टू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर. अब एक्सटर्नल मेमोरी कितनी कनेक्ट कर सकते हैं? ऐसे नहीं कि कितनी भी मेमोरी कनेक्ट कर सकते हैं. 8051 की एक लिमिट है. 8051 की जो एड्रेस बस है वो 16 बीट है. ओके, सो 16 बीट एड्रेस बस होने की वजह से it will supports only 64 किलोबाइट ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी. ओके, सो ये जो एक्सटर्नल मेमोरी को सपोर्ट करता है वो कितना है? 64 किलोबाइट ऑफ ROM मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी या डेटा मेमोरी. आप दोनों में से कोई भी मेमोरी इंटरफेस कर सकते हैं. आपको रैम करनी है रैम कर सकते हैं, ROM करनी है ROM कर सकते हैं. सो मैक्सिमम 64 किलोबाइट ऑफ प्रोग्राम मेमोरी और डेटा मेमोरी each can be interfaced with 8051 microcontroller. An important point to remember when interfacing external memory of with 8051 microcontroller is that microcontroller का जो दो पोर्ट है, port 0 can be act as your lower order address bus and port 2 can be act as your higher order address bus. सो पोर्ट 0 और पोर्ट 2 ये दोनों पोर्ट एंगेज हो जाएंगे. उसको आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते जब लोग आप एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस करेंगे उस टाइम पे. ओके, सो इसकी डायग्राम कैसे आती है? क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका एग्जाम में. ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन द एग्जाम? एग्जाम में क्वेश्चंस क्या आएगा आपका? इंटरफेस, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम फॉर इंटरफेसिंग 64 और एक्सटर्नल मेमोरी टू 8051. सो आप ये डायग्राम निकाल सकते या फिर ये डायग्राम निकाल सकते. अगर ROM पूछा है तो आपको ROM लिखना है यहाँ पे नाम, RAM पूछा है तो RAM नाम लिखना है, एंड रेस्ट ऑफ द डायग्राम इज गोइंग टू बी सेम ओवर हियर. या फिर अगर पूछा जाता है कि इंटरफेसिंग एक्सटर्नल मेमोरी RAM एंड ROM विथ 8051, सो दिस इज द डायग्राम. दिस डायग्राम इज आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क. ये डायग्राम एग्जाम में 4 मार्क के लिए पूछी जाती है. ओके, सो द क्वेश्चन फॉर दिस वन इज ओनली व्हाट? Draw the interfacing diagram to interface external RAM with 8051. This question, only the diagram is asked and this question is for 4 marks. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this Yes, is sir. the one question which may be asked in the exam, memory interfacing. Here only diagram is asked. Okay. And you may write these two sentences that maximum 64 kilobyte of program memory or data memory can be interfaced. So this is the first thing. Second, this is the question from chapter number 3. Okay, using external memory and internal memory. Basically what happened, we have the 4 kilobyte of internal memory for programming, for storing the program, and we can add additionally 64 kilobyte. Okay, but if you want to use both internal memory and external memory both, then this is the diagram. And if you want to use only external memory, then this is the diagram. Now where is the difference? You can see the difference is over here. If you want to use internal memory as well as external memory, EA pin should be connected to the +5 volt. And if you want to use only external memory, then EA pin should be connected to the ground. Is it clear? Using only external memory,
we have to connect EA pin to the ground, and if you want to use both internal memory as well as external memory, you have to connect that EA pin to the plus 5 volt. Is it clear to everyone? Okay. Yes, sir. Then we have 128 byte of RAM. Okay, this 128 byte of RAM can be used, and that we know that 128 byte is divided into, say, register bank, then bit addressable area, and then we have the general patch or scratch pad area. But apart from that 128 byte, my 8051 has additional 128 byte of RAM, but this RAM is not directly available to us. We can use this RAM is for your CSFR, special function registers. So we have discussed some special function register just like PCON, power control register. Okay, then we have discussed PSW, program status word, SCON, SBUF, TMOD, timer mode register, timer control register. Okay, so this additional 128 byte of RAM can be used for this one, and you can access this like this one. So this is just for your information. This question is not asked in the exam. Okay, so this is my data memory 8051 128 byte, which is this one, and this question is very commonly asked in the exam. Memory organization of 8051, in which you are going to show the register bank, then bit addressable area, and then general purpose register. Okay, then this is the most important part of this one, IO interfacing. What is meant by IO? I stand for input and O stand for output. Okay, now input means what? What are the input devices which can be used for 8051? So my input device means what? A device which will give signal to the microprocessor. This is my 8051. So 8051 input means signal is coming inside the microcontroller. Signal is coming to the microcontroller. So input devices will give signal to the microcontroller, and output devices, the signal will come out of the microcontroller. So input devices are switch. Okay, then sensor, various types of sensor. That sensor may be your temperature sensor, that may be your pressure sensor, that may be your water sensor or liquid level sensor, level sensor, or that may be your RTD, register temperature detector. What are the different sensors? All the sensors are your input devices. All the switches are your input devices. Then what are the output devices? The most commonly used output devices for 8051 is your LED light. Okay, or different types of lights. That may be LED, light emitting diode. Okay, it may be LCD, liquid crystal display. It may be 7-segment display. Then that may be motor, different types of motor. That may be DC motor, servo motor. It may be your stepper motor. That may be a relay. It may be your buzzer. Sometimes this question is asked in the exam. List any 4 input and output devices which can be used for 8051. Okay, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चंस कभी कभी 2 मार्क के लिए या कभी 4 मार्क के लिए भी आ सकता है. 2 मार्क के लिए पूछा है तो लिस्ट एनी 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो इनपुट डिवाइसेस में आप स्विच लिख सकते हैं, सेंसर्स लिख सकते हैं, कोई भी 2-3 सेंसर के नाम लिख देना. आउटपुट डिवाइसेस में LED, LCD, 7-segment display, DC motor, servo motor, stepper motor, relay, buzzer. These are your commonly used output devices. Is it clear to everyone? Input devices will give signal to the microcontroller. Okay. और आउटपुट डिवाइसेस का क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर का से बाहर निकलता है सिग्नल. इफ़ यू आर गोइंग टू सी द डायरेक्शन ऑफ एरो, इनपुट का एरो जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर जा रहा है, और आउटपुट का जो एरो है इट इज़ कमिंग आउट फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर. ओके, सो दिस इनपुट डिवाइसेस विल गिव सिग्नल टू द माइक्रो कंट्रोलर एंड आउटपुट डिवाइसेस विल ऑपरेट बेस्ड ऑन द सिग्नल विच इज़ कमिंग फ्रॉम द माइक्रो कंट्रोलर. Okay, so
अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। सो अगर मुझे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस यूज़ करने हैं तो उसके पहले क्या है, माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें ऑलरेडी यू आर फेमिलियर विद द पिन डायग्राम ऑफ 8051। 8051 हैज़ अ 40 पिंस, 1 से लेके 20 तक एक साइड में पिन है, 21 से लेके 40 तक दूसरी साइड में पिंस है, ऐसी काफ़ी सारी पिंस है उसमें। ओके, सो ये जो पिंस है इसमें पोर्ट में डिवाइड किया है, इसमें 4 पोर्ट है, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3, ऐसे अलग अलग पोर्ट्स है। हर एक पोर्ट में 8 पिन है। ओके, so each port consists of 8 pins, so I have total 32 pins which can be used as a input output pin. ओके, सो मेरे पास कितनी पिंस है, टोटल 32 पिंस है जो मैं इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ओके, अब ये जो आउटपुट, अगर किसी पिन को मुझे इनपुट करके यूज़ करना है या किसी पिन को मुझे आउटपुट करके यूज़ करना है, सो माइक्रो कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि वेदर इट इज़ ए इनपुट पिन और आउटपुट? तो उसको पहले आपको कॉन्फ़िगर करना होगा। अगर इसको आउटपुट के लिए यूज़ करना है तो उस पिन को पहले क्या भेजना होगा, लॉजिक 0। ओके, से इफ़ यू वांट टू यूज़ पिन नंबर 1.0 एज अ आउटपुट पिन, सो आपको करना क्या होगा, CLR P 1.0, यानी उसको क्या करना होगा, उस पिन को 0 करना, या फिर मूव। ओके, पूरा पोर्ट ही यूज़ करना है। पोर्ट 1 कैन बी यूज एज आउटपुट पोर्ट, मूव P1, #00H. Okay, so when you are going to send this, the microcontroller knows it is now output port. अगर आपको input port करके यूज़ करना है, मुझे पोर्ट 2 को क्या करना है, अभी इनपुट पोर्ट करके यूज़ करना है, तो मुझे लिखना होगा मूव P2, 0x FFH टू यूज एज ए इनपुट। मीन्स उसको यप मीन्स क्या, 1111। ओके, सो 1 अगर मैं लिखता हूँ तो पिन इनपुट पिन हो जाती है, 0 अगर लिखता हूँ तो पिन आउटपुट पिन हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू डू द इंटरफेसिंग एंड मेकिंग योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। जब भी आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे या फिर एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि हाउ टू कॉन्फ़िगर अ पर्टिकुलर पिन एज ए इनपुट पिन और आउटपुट पिन। आउटपुट के लिए उसको क्या करना है, लॉजिक 0 लिखना है, और इनपुट के लिए क्या करना है, लॉजिक 1 लिखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, नाउ इफ़ आई वांट टू मेक सम एप्लीकेशन, अगर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी, ये मेरा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसको मुझे एक स्विच लगाना है। सो आई नो स्विच इज़ ए इनपुट डिवाइस, और उस स्विच से मुझे क्या करना है कि एलईडी को ऑन करना है। दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी ओवर हियर। ओके, सो अब मुझे प्रोग्राम क्या करना होगा, मुझे एलईडी लगाना है। एंड नाउ दिस इज़ क्या होता है मुझे कि ये जब बटन प्रेस करूँगा उस टाइम पे एलईडी ग्लो होगा। ओके, so what I have to write down, the pin, this should be connected to certain pin, say it is connected on P 1.0 and it is connected on P 3.2. so output LED कहाँ कनेक्ट किया है मैंने, P 3.2 को कनेक्ट किया है, और स्विच कहाँ कनेक्ट किया है, P 1.0 को कनेक्ट किया है। so जब P 1.0 इज इक्वल टू 1 होगा उस टाइम पे मुझे क्या करना है, P 3.2 को भी 1 करना है। ओके, सो दिस इज़ माई प्रोग्राम। बेसिकली व्हाट हैपन, जब स्विच प्रेस करेंगे तब एलईडी ग्लो होगा, स्विच अगर प्रेस नहीं किया तो एलईडी डज नॉट ग्लो। लेकिन अभी मुझे इसका ऑटोमेशन करना है। आई वांट टू मेक वन ऑटोमेटिक लैम्प। जैसे ही लाइट कम हो जाता है, जैसे अंधेरा होगा तो लाइट ऑन होने चाहिए, जैसे उजाला होगा तो लाइट कम होने चाहिए, इसलिए मैं वहाँ पे क्या यूज़ करता हूँ, फोटो सेंसर। ओके, या फिर LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। सो ये स्विच की जगह अभी क्या आ गया है, सेंसर। सो आपका प्रोग्राम क्या होगा अभी, ORG 0000H। ओके, अब ये क्या करेगा, ये अभी मॉनिटर करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक लूप क्रिएट करता हूँ, जंप इफ बीट इज़ नॉट सेट, JNB P 1.0। ओके, जंप इफ बीट इज़ नॉट सेट टू लूप। ओके, जब तक ये P 1.0 की वैल्यू 1 नहीं होती है तब तक ये क्या करेगा, यहाँ पे ही घूमते रहेगा। इट विल JNB, दिस इज़ व्हाट इज़ द इंस्ट्रक्शन, JNB जंप इफ बीट इज़ नॉट सेट। कहाँ जंप करना है, लूप पे। लेकिन जब उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो एट दैट टाइम व्हाट यू आर गोइंग टू डू, P 3.2 इज इक्वल टू 1।
ओके जैसे ही उसकी वैल्यू 1 हो जाती है P1.0 की, तो आपको क्या करना है, P3.2 को 1 करना है. अब P3.2 को 1 करने के लिए इंस्ट्रक्शन क्या है, ACTB P3.2 और प्रोग्राम आ गया है एंड. ओके सो ये 2 लाइन का प्रोग्राम क्या है. इस प्रोग्राम में जैसे ही अंधेरा होगा, सो एट दैट टाइम द एलईडी विल ग्लो. ओके जैसे ही अंधेरा होगा तो क्या होगा कि एलईडी ग्लो हो जाएगा, और उजाला होगा तो एट दैट टाइम इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ. ACTB P3.2. ओके इज इट क्लियर. इंटरफेसिंग में क्या कर रहे हैं हम पता चला अभी आपको. वेदांत, निखिल, Yes, Okay. sir. Yes, sir. इंटरफेसिंग करतो म्हणजे काय करतो, सिम्पली इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस मायक्रो कंट्रोलला आपण कनेक्ट करतोय. ओके आणि त्याच्यानंतर प्रोग्राम लिहितो. आता तुम्ही बघितलं असेल 2 लाइनचा प्रोग्राम है. व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस प्रोग्राम, सिर्फ इतना ही प्रोग्राम है आपका. लेकिन ये प्रोग्राम क्या करेगा, जब भी अंधेरा होगा लाइट ऑन कर देगा, जब उजाला हो जाएगा लाइट ऑफ कर देगा. ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट. ओके दिस इज द प्रोग्राम फॉर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट. So now we are going to see some interfacing. The basic is clear. So इसका फ्लो चार्ट कैसे रहता है, ऐसे फ्लो चार्ट रहता है. जैसे हम स्टार्ट करते हैं ओके उसके बाद में क्या करना है, सेंसर क्या करेगा, सेंसर विल रीड द डेटा एंड देन इट विल चेक वेदर द पिन इज़ हाई. अगर येस है तो एलईडी को ऑफ करना, ऑन करना है, नो है तो ऑफ करना है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी कंटिन्यूड. दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड. नाउ वी आर गोइंग टू सी दिस इज द question which is asked in the exam. Draw the interfacing diagram of LED with 8051 microcontroller. 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है. कौन सा क्वेश्चन है, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ LED with 8051 microcontroller. So all of you are familiar with the symbol of LED. LED has 2 terminals, one is anode and second one is called as the cathode. Okay, so LED का ये सिंबल है. अब LED क्या रहता है, LED में 2 टर्मिनल्स है. एनोड आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जो लंबा रहता है उसको बोलते हैं एनोड, जो थोड़ा छोटा रहता है उसको बोलते हैं कैथोड. ओके अगर दोनों टर्मिनल सेम ही दिख रहे हैं आपको, सो एट दैट टाइम यू कैन सी दिस वन इज़ योर एनोड. ऐसे ट्रायंगुलर फ्लैग जैसे जो दिखता है वो एनोड है, और जो ऐसा प्लेन है वो कैथोड है. ओके अगर ये दोनों टर्मिनल की लेंथ सेम है, कभी कभी क्या क्या रहता है, कट कर लेते हैं टर्मिनल. सो एट दैट टाइम टू आइडेंटिफाई दिस ट्रायंगुलर फ्लैग शेप इज कॉल्ड एज एनोड एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज कैथोड. अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, सो बेसिकली व्हाट हैपन फॉर वर्किंग ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इट टू द सप्लाई. सो मैं इसको सप्लाई से कनेक्ट करता हूँ. सो ये हो गया मेरा सप्लाई ओके बैटरी से. लेकिन ये एलईडी कितने वोल्ट का है, 3.5 वोल्ट का है. बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है. इफ़ आई विल गिव डायरेक्टली 12 वोल्ट सप्लाई टू द एलईडी विल मे गेट डैमेज. सो आपको उसमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस लगाना होगा. ओके एंड this is basically the simple connection for connecting LED to the 8051 LED to the supply. But I want to control this LED with 8051. So मुझे क्या करना होगा वहाँ पे. ओके जैसे ही आप सप्लाई ऑन करेंगे तो LED ऑन होना चालू हो जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी द इंटरफेसिंग डायग्राम. ओके दिस इज द इंटरफेसिंग डायग्राम फॉर कनेक्टिंग LED टू द 8051 माइक्रोकंट्रोलर. सो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, द LED इज कनेक्टेड टू पिन 1.0. ओके द एनोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पिन 1.0 and cathode is connected to the ground. But basically here you have to connect one resistance of 330 ohm. आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा 330 ओम का, क्योंकि जनरली LED जो रहता है वो 1.5 वोल्ट या 3 वोल्ट का रहता है. ओके एंड द सप्लाई ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इज़ 5 वोल्ट. ओके सो वहाँ पर आपको क्या करना है कि एक रेजिस्टेंस उनके बीच पे कनेक्ट कर देना है LED और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में, सो दैट द LED कैन नॉट गेट डैमेज. एंड नाउ द प्रोग्राम फॉर दिस वन, ये उसका प्रोग्राम. सो एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है 4 मार्क के लिए क्वेश्चन ये आता है, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ LED टू द 8051 एंड राइट द प्रोग्राम टू टॉगल द LED और ब्लिंक द LED और मेक द LED ऑन एंड ऑफ आफ्टर पर्टिकुलर डिले. सो इसमें सिर्फ करना क्या है, आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं. सो दिस यू हैव टू राइट, ये आपका यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता ORG 0000H. दिस इज़ द फर्स्ट लाइन दे हैव रिटन ओवर हियर. मूव P1 01H. ओके उन्होंने P1 को क्या कर दिया,
0 1 कर दिया। ओके, उसके बाद मैं डिले कॉल किया और P1 की वैल्यू एक्यूमुलेटर में भेज दी। एक्यूमुलेटर को कॉम्प्लीमेंट किया, कॉम्प्लीमेंट करना है यानी 0 को 1 करना, 1 को 0 करना। उसके बाद मैं एक्यूमुलेटर की वैल्यू फिर से क्या कर दी उन्होंने, P1 में भेज दी और उसको डिले कॉल किया। यानी ये क्या करेगा, एलईडी को ऑन करेगा थोड़ी देर के लिए। ओके, थोड़ी देर के लिए ऑन होगा, उसके बाद में थोड़ी देर के लिए ऑफ होगा। लेकिन ये डिले कैसे किया है, तो डिले क्रिएट करने के लिए उन्होंने एक सब रूटीन लिखी है, मूव R5 #10, मूव R6 #20 200, मूव R7 DJNZ R7, DJNZ R6, DJNZ R5। यानी उन्होंने क्या किया, माइक्रो कंट्रोलर को इसी काम में बिजी रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो उसकी वजह से उनको थोड़ा डिले मिल गया। सो दिस इज़ द प्रोग्राम दैट यू हैव टू राइट फॉर blinking the LED or making the LED on and off for a particular time delay. Okay, is it clear? So this is the question which is asked in the exam for 4 marks. Draw the interfacing diagram of LED and write the program for this one. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है 4 मार्क के लिए, उसमें ऐसे भी ओके, वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, draw the interfacing diagram for connecting 8 LEDs to the 8051 microcontroller। पहले क्वेश्चन में हमने एक सिंगल LED कनेक्ट किया था, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है उन्होंने, 8 LEDs। सो सिंपली वैसे ही करना है आपको, जो पहले एक LED कनेक्ट किया था उसके एक पिन पे कनेक्ट किया था, बाकी जो बची हुई पिन है सबको LED कनेक्ट करना है। सो इफ़ यू वांट यू कैन कंट्रोल all the LED at once और as per your requirement, एक के बाद एक ऐसे प्रोग्राम के हिसाब से आप उसको, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, सो इज इट क्लियर? ये क्वेश्चन भी 4 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ 8 LEDs टू द 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सिर्फ यहाँ पे देखिए, हर एक LED के साथ में उन्होंने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। ओके, यू कैन यूज़ अ सिंगल रेजिस्टेंस ऑल्सो, यहाँ पे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, आप सिंगल रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, सबको कॉमन करके एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर दिस वन। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिले। एलईडी क्या है, एलईडी तो लो पावर डिवाइस है, एलईडी 5 वोल्ट पे ही वर्क करता है। सो मैं डायरेक्टली 3.5 वोल्ट या 1.5 वोल्ट या 5 वोल्ट के एलईडीज़ मार्केट में अवेलेबल है, मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ 8051 से। लेकिन मुझे अगर आपके घर में जो बड़ा लाइट रहता है, लैम्प 230 वोल्ट का लैम्प कंट्रोल करना है माइक्रो कंट्रोलर से, या फिर करना है मुझे मोटर, या फिर करना है आपका फ़ैन कंट्रोल करना है 8051 से। सो क्या होता है, ये मोटर के लिए, फ़ैन के लिए सप्लाई लगता है 230 वोल्ट का, और आपका माइक्रो कंट्रोलर जो है वो सप्लाई देता है सिर्फ 5 वोल्ट का। माइक्रो कंट्रोलर का आउटपुट कितना है, सिर्फ 5 वोल्ट, और डिवाइसेस को इनपुट कितना लगता है 230 वोल्ट। सो मैं डायरेक्टली तो उससे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए उसके साथ में मुझे क्या यूज़ करना गिरता है, रिले। सो मेनी ऑफ यूर सीन सच टाइप ऑफ डिवाइस, आप लोगों ने ऐसे देखा है कभी? दिस इज कॉल्ड एज रिले। ओके, रिले देखा है आप लोगों ने? सो रिले को एक 5 टर्मिनल रहते हैं, यहाँ पर एक, ये हो गया 2 नंबर का, 3, 4 और ये 5। दीज आर द 5 टर्मिनल्स। ओके, नाउ दीज 5 टर्मिनल्स, 1 and 2 टर्मिनल इज योर कॉइल टर्मिनल। 1 और 2 जो टर्मिनल्स है वो किस लिए? कॉइल के लिए। 3rd terminal is your common terminal, and 4th and 5th is your NO terminal and NC terminal. NO stand for normally open and NC stand for normally close. And this is your normally open. Okay, so ये 2 टर्मिनल रहते हैं। अगर आपको डिवाइस रिले एनर्जाइज होने के बाद में ऑन करना है तो उसको एनओ को कनेक्ट करना होगा, और रिले एनर्जाइज होने के बाद में ऑफ करना है तो एनसी को कनेक्ट करना होगा। ओके, इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द डिवाइस व्हेन रिले इज ऑन, एट दैट टाइम यू हैव टू कनेक्ट इट टू द एनओ, और ये डिवाइस को ऑफ करना है तो उसको कनेक्ट करना होगा एनसी को। ओके, सो जब आप ये देखो, यहाँ पे अभी एनिमेशंस दिख रहा है। सो व्हेन द स्विच इज़ गोइंग टू बी क्लोज, ये स्विच अगर क्लोज होता है, सो ये क्लोज हो रहा है और यहाँ से सप्लाई जा रहा है।
ये एक और दो टर्मिनल जो है वो कॉइल के टर्मिनल है. 1 and 2 is the terminal of coil. So when the current will flow through the coil, it will create the magnetic field, and this magnetic field will attract this plunger. ओके, सो ये प्लंजर को क्या करती है, अपनी तरफ खींचता है. सो उसकी वजह से पाथ क्लोज हो जाती है और आपका करंट फ्लो होता है उसमें से. ओके, सो द डिवाइस इज गोइंग टू वर्क. ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो रिले को आपने सप्लाई दे दिया. अब रिले ऑपरेट हो रहा है. रिले ऑपरेट होने की वजह से जो हेवी लोड्स है, सम हेवी लोड्स यू आर गोइंग टू कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेज. ओके, यहाँ पे जो रिले, ये आपका टर्मिनल नंबर 1 और 2, ये आ गया आपका टर्मिनल नंबर 3, ये आ गया टर्मिनल नंबर 4, और ये 4 पे से सप्लाई कंटिन्यू हो रहा है. ओके, सो दिस इज द रिले. नाउ हाउ द रिले इज कनेक्टेड टू द 8051 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो दिस डायग्राम इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. 4 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जाती है एग्जाम में. ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ रिले विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. सो ये आ गया आपका 8051 माइक्रो कंट्रोलर, और उसको आपने रिले कनेक्ट कर दिया. यू मे डायरेक्टली कनेक्ट द रिले और यू कैन यूज़ अ ट्रांजिस्टर ऑल्सो, BC547 और BC548. ओके, अगर 5 वोल्ट का रिले है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते, लेकिन 9 वोल्ट 12 वोल्ट का रिले है तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द ट्रांजिस्टर. इज इट क्लियर? सो नॉर्मली you have to draw this diagram. This is the relay interfacing with 8051. This is very commonly asked question in the exam for 4 marks. Okay, and this is the program. Sometimes they will ask you the program also. Draw the interfacing diagram for connecting a relay to the 8051 and write the program to toggle the relay. Okay, so same program. LED toggle के लिए जो प्रोग्राम था वही प्रोग्राम है. इसमें क्या हो गया, सिर्फ आपने LED की जगह पे यहाँ पे रिले कनेक्ट कर दिया. सो इट विल मेक द रिले ऑन एंड इट विल मेक द रिले ऑफ. एंड दिस डिले प्रोग्राम, यू हैव टू रिमेंबर दिस डिले प्रोग्राम. ये डिले प्रोग्राम है ना, आप याद कर लो, ये काफ़ी बार यूज़ होने वाला है. ओके, सो दिस इज़ अ कॉमन प्रोग्राम. दिस इज़ अ सब रूटीन जनरली, एंड विच यू आर गोइंग टू बी कॉल इन द मेन प्रोग्राम एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. So this question is very very important, and this question is generally asked for 4 marks, or sometimes it may be asked for 6 marks along with program. Okay, so this is, I have shown one simple animation for this one. Sometimes you are going to use ULN 2803 for interfacing relay also, or 2003 also. Basically 2003 use you for motor. ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो को 2 टर्मिनल रहते हैं. एक नॉर्मली ओपन रहता है और दूसरा नॉर्मली क्लोज रहता है. जब रिले एनर्जाइज नहीं रहता है ना, उस टाइम जो क्लोज रहता है ना, उसको बोलते हैं, नाउ इट इज़ अ रिले इज़ क्लोज, सो इट इज़ NO टर्मिनल एंड दिस इज़ NC टर्मिनल. ओके, सो NO को जैसे ही रिले ऑपरेट होता है, यू कैन सी द चेंजेस हो रही है. यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है. ओके, यानी कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है. करंट फ्लो होने के बाद में जो नॉर्मली ओपन टर्मिनल था, वहाँ से ये जो सेंट्रल टर्मिनल है उसको कनेक्ट कर रहा है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है. ओके, और दूसरा जो डिवाइस है वहाँ उसको वो क्या कर रहा है, ऑफ कर रहा है. इसको ऑन कर रहा है और दूसरे डिवाइस से उसको ऑफ कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट वन इज अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले. ओके, सो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हैज़ टोटल 10 पिंस. आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, और ऐसे ही 5 पिन इस साइड से. सो इसको टोटल कितनी पिन्स रहती है, 10 पिन रहती है. उस पिन को नाम दिए ABCDEFG, और 2 जो है वो कॉमन है. सो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो आते हैं 2 टाइप में आते हैं. 7 सेगमेंट डिस्प्ले विल कम इन 2 टाइप्स, common anode type and common cathode type. Okay, so 7 segment displays are of 2 types. One is called as common cathode and second one is called as common anode. In common cathode type, the cathode of all LEDs are tied together to a single terminal, which is usually labeled as common, and the anode of LEDs are left alone as an individual pin labeled as A, B, C, D, E, F, G and H. So common कैथोड जो रहता है, सो आप यहाँ पे देखो, ये LED जो रहता है उसको 2 टर्मिनल रहते हैं,
एक रहता है एनोड और कैथोड। सो कॉमन कैथोड में क्या किया उन्होंने, सब एलईडीज़ के कैथोड टर्मिनल को उन्होंने क्या कर दिया है, एक साथ जोड़ दिया है। सो एक साथ जोड़ने के बाद में वो क्या हो गया, कॉमन। सो कॉमन कैथोड में क्या करते, हर सब एलईडी का कैथोड टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ देते हैं और उसको कॉमन बना देते हैं, और ये जो बाकी बचे हुए हैं उसको इंडिविजुअल 8051 पिन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब दूसरा जो रहता है वो कॉमन एनोड रहता है, उसमें क्या करते हैं, जितने भी एनोड टर्मिनल है उसको सब एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन एनोड। अब यहाँ पे देखो, ऑल द एनोड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जितने भी एनोड टर्मिनल्स है सबको एक साथ कनेक्ट किया है। ओके, और यहाँ पे फिर कैथोड को इन्होंने दिया। अब क्या कॉमन कैथोड में, कॉमन कैथोड जब रहता है ना, सो जब आप इसको 1 लिखेंगे, अगर ये आपने 8051 की पिन नंबर 1.0 को कनेक्ट किया, सो पिन 1.0 की वैल्यू जब 1 होगी तब ये एलईडी ग्लो होगा। ओके, एंड ए कॉमन कैथोड में एलईडी कब ग्लो होता है, जब पिन 1 होती है, और कॉमन एनोड में एलईडी कब ग्लो होता है, जब पिन की वैल्यू 0 होती है। ओके, यहाँ पर कॉमन एनोड में क्या होता है, जब पिन की वैल्यू 0 होगी ना, उस टाइम पे वो ग्लो होगा, तब तक वो ग्लो नहीं होता है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? फिर हमने देखा था हाउ टू क्रिएट द टेबल फॉर एलईडी। अगर मुझे वहाँ पे डिस्प्ले करने हैं, अब आप पहले इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये एनिमेशन दिख रहा है आपको, इट इज़ गोइंग टू डिस्प्ले सम लेटर्स 0 1 2 3 4, नाउ इट इज़ डिस्प्लेइंग 4, नाउ इट इज़ डिस्प्लेइंग 5। ओके, अब ये 6 डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद में अभी ये 7 डिस्प्ले कर रहा है, अभी ये 8 डिस्प्ले करेगा, अब ये 9 डिस्प्ले करेगा। ओके, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट विथ 0 1। ओके, सो क्या हो रहा है कि कुछ एलईडी के कुछ सेगमेंट्स को क्या कर रहा है, ऑन कर रहा है और ऑफ कर रहा है। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी और ये पी, इसी कॉल्ड एज द डेसिमल पॉइंट और पॉइंट टर्मिनल। सो मुझे अगर इसको डिस्प्ले करना है, यहाँ पे मुझे 1 डिस्प्ले करना है, 0 डिस्प्ले करना है, तो सिर्फ जी को बंद रखना है। ओके, सो नाउ एज इट इज़ अ कॉमन एनोड टाइप, ओके, सो व्हेन इट इज़ 1 इट इज़ गोइंग टू बी 0। ये डी ये किस लिए है, ये पॉइंट का टर्मिनल है और ये जी टी की टर्मिनल है। यहाँ पे क्या है, जी है, और यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो इन दोनों को क्या कर दिया मैंने, 1। तो ए ग्लो हो गया, एफ ग्लो हो गया, ई ग्लो हो गया, डी ग्लो हो गया, सी ग्लो हो गया और बी ग्लो हो गया। इट विल डिस्प्ले 1 0, इट विल डिस्प्ले 0। अगर मुझे 1 डिस्प्ले करना है तो बी और सी को ही सिर्फ 1 करना है, बाकी सबको क्या करना है, 0 करना है। बी एंड सी शुड ग्लो एंड अदर शुड बी ऑफ। और बी एंड सी को अगर ग्लो करना है मुझे, तो क्या करना होगा, उनके लिए 0 0 लिखना होगा इन केस ऑफ कॉमन एनोड, एंड रेस्ट आर 1। सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस कोड, यू विल गेट द हेक्स वैल्यू ऑफ दिस वन। ओके, आपको उसकी ऐसे अलग अलग हेक्स वैल्यू मिलेगी। अगर आपको प्रोग्राम लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले 0 to 9, सो सिंपली 0 के लिए मूव P1 अगर आपको कनेक्ट किया है तो 0 3H, मूव P1 कॉमा हैश 0 3H, दिस विल डिस्प्ले 0। ओके, अगर आपको 1 डिस्प्ले करना है, मूव P1 कॉमा हैश, अब ये 9F, 9 कैसे आ गया, ये आ गया 1 2 4 8 1 2 4 8। ओके, सो ये 8 1 है, 1 1 है, तो ये आ गया 9, और यहाँ पे सब 1 है, तो ये क्या गया 8 हो 4 12 14 15, 15 मीन्स F, सो इट इज़ 9F 0 9F। ओके, सो इट विल डिस्प्ले 1। ओके, सो ऐसे सिर्फ आपको ये लिखना है, ये हो गया आपका प्रोग्राम P1 कॉमा हैश 25EH, it will display 2 like this one। okay, and in between that there is delay, so यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कॉल डिले करके लिख देना, थोड़ा सा कॉल डिले। दिस इज द प्रोग्राम फॉर displaying 0 to 9 on say 7 segment display। so this is the interfacing diagram for the same। ओके, इस इंटरफेसिंग डायग्राम में आपने क्या कर दिया, ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले, उसको पोर्ट पिन के साथ में कनेक्ट कर दिया। दैट मे बी योर कॉमन एनोड टाइप और इट मे बी कॉमन कैथोड टाइप, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो कॉमन, यहाँ पे इन्होंने कॉमन कैथोड यूज़ किया है, तो इसलिए एक कॉमन जो है दैट इज़ योर कैथोड टर्मिनल एंड द एनोड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू द पोर्ट पिन्स, एंड दिस इज़ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में देखो आप, सिंपली
दिस इंस्ट्रक्शन इज रिपीटेड 8-9 टाइम्स. ओके, मूव किया P2 पे एक नंबर, मूव किया P2 पे एक नंबर, मूव किया P2 में डिले कर दिया. सो ये नंबर क्या करेगा, 0 डिस्प्ले करेगा, A1 डिस्प्ले करेगा. उसके बाद में ये डिले का प्रोग्राम है. पिछली बारी मैंने बताया था कि डिले का प्रोग्राम याद करके रखो, डिले का प्रोग्राम हर जगह पे यूज़ होता है. ओके, सो वॉट एवर द प्रोग्राम यू रिमेंबर सिंपल. ओके, आपको जो सिंपल लगता है उस प्रोग्राम को याद कर लो या फिर अंडरस्टैंड कर लो. that may be useful a number of times in your main program. So this question is asked for 4 marks और 6 मार्क. अगर सिर्फ इंटरफेसिंग डायग्राम पूछते हैं तो जनरली 4 मार्क के लिए पूछते हैं. इंटरफेसिंग डायग्राम प्रोग्राम के साथ में पूछते हैं तो उसको 6 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन. इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि मुझे ना एक या 7 सेगमेंट डिस्प्ले नहीं कनेक्ट करना है, मुझे मल्टीपल 7 सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट करने. जैसे आप लोग देखते हैं जब भी आप ग्लोसरी शॉप जाते हैं तो वहाँ पे है ना वेइंग स्केल रहती है. वेइंग स्केल में मल्टीपल डिस्प्ले यानी 1 kg के लिए 1000 ऐसे 3-4 डिस्प्ले रहते हैं. तो अब वो कनेक्ट करने तो कैसे करेंगे? जितने भी डिस्प्ले कनेक्ट करने हैं ना तो उनके लिए डेटा पिन एक ही है. आप यहाँ से देखो, सब डिस्प्ले के लिए डेटा एक ही पिन से जा रहा है. ओके, सिर्फ उसकी कंट्रोल पिन अलग अलग है. ये कंट्रोल हो रहा है P1.0 से, ये 1.1 से, ये 1.2 से. दिस इज़ P1.1, दिस इज़ P1.0 एंड दिस इज़ P1.2. दिस इज़ द ओनली डिफरेंस. और हर एक के साथ में आपने क्या कर दिया, एक ट्रांजिस्टर. दिस ट्रांजिस्टर कैन एक्ट एज अ स्विच. ये स्विच क्या कर रहा है, ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, इन डिस्प्ले को ऑन और ऑफ कर रहा है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. Draw the interfacing diagram for interfacing multiple 3 or 4 7 segment display with 8051. अगर 7 segment डिस्प्ले को पूछा जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 1.3 आ जाएगा एंड सेम सर्किट इज गोइंग टू बी रिपीटेड और आपको ऐसे एक एडिशनल उसके बाहर निकालना है. सो ये आपने देखा होगा यहाँ पे कितने डिस्प्ले यूज़ किए, 1 2 3 4 मल्टीपल डिस्प्लेज आर देयर. दीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले. ओके, जैसे आप 8051 से कनेक्ट करते तो ये जो टर्मिनल्स है ये पिन जाएगी आपकी 8051 के साथ में. ये P1.0, P1.1, P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6 इसको कनेक्ट होगी और एज़ पर योर प्रोग्राम आपके हिसाब से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं. क्या डिस्प्ले करना है उसके हिसाब से उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं. उसके बाद में आता है मोटर. अब जनरली क्या होता है कि माइक्रो कंट्रोलर अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. कभी आपको उसमें से रोबोट्स बनाने हैं या फिर ऑटोमेटिक कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए कभी कभी आपको टॉर्क जनरेट करने के लिए या फिर कुछ मूव करने के लिए आपको मोटर भी यूज़ करनी करती है. सो जनरली फॉर माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम वी आर गोइंग टू यूज़ डीसी मोटर. ओके, छोटे छोटे खिलौनों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे डीसी मोटर यूज़ होती है. तो डीसी मोटर को 8051 के साथ में कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे कनेक्ट किया जाता है. सो जनरली योर डीसी मोटर हैज़ 2 टर्मिनल्स. आप देखेंगे तो उसको 2 टर्मिनल रहते हैं, एक रहता है पॉजिटिव और एक रहता है निगेटिव. ओके, जब आप पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करते हो, निगेटिव टर्मिनल बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं तो मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट होती है. लेकिन जब आप मोटर का पॉजिटिव बैटरी के निगेटिव को और बैटरी का मोटर का निगेटिव बैटरी के पॉजिटिव को कनेक्ट करेंगे तो मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ओके, so sometimes you are going to use the same motor to rotate in forward direction or in reverse direction also. So that can be possible with the help of microcontroller without changing connection, without changing the physical connections. Okay, by just changing the status of that particular pin. So अभी हम देखते हैं कि 8051 के साथ में मोटर को कैसे इंटरफेस किया जाता है. So generally what happen, your motor required high current. मोटर का करंट जो रहता है वो ज़्यादा रहता है और माइक्रो कंट्रोलर जो सप्लाई करता है करंट वो 10 मिली एम्पियर तक ही करता है. ओके, माइक्रो कंट्रोलर कितना करंट सप्लाई कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिली एम्पियर. और मोटर का करंट जो रहता है वो मे बी 100 मिली एम्पियर और इट मे बी इन सम एम्पियर. So if I am directly connecting this motor to the 8051,
दैट विल डैमेज माई 8051। अगर मैं मोटर डीसी मोटर 8051 को डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ तो वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा करंट खींचने की वजह से 8051 को डैमेज कर देगा। इसलिए मोटर को कभी भी 8051 के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता। मोटर और 8051 के बीच में एक एम्पलीफायर लगते हैं। वी आर गोइंग टू यूज वन L293D। ओके, दिस इज अ ड्राइवर IC, दिस इज कॉल्ड एज मोटर ड्राइवर IC, which act as a say separation between the 8051 and your motor, and it will only provide the signal। ये सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करेगी और उस सिग्नल के हिसाब से अलग से सप्लाई देगी। It will not take the supply from 8051, it will give the supply externally, which is connected to the external source of the supply। Okay, so this is the interfacing diagram for connecting the DC motor with 8051। याद रखना, सिर्फ मोटर को डायरेक्टली 8051 के साथ में कनेक्ट नहीं करना है, उसके साथ में उसके मोटर और 8051 के बीच में क्या डालना है, L293D। ओके, अगर याद नहीं आ रहा तो मोटर ड्राइवर IC लिखना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मोटर और 8051 के बीच में आपको एक IC कनेक्ट करनी है, दैट नेम इज L293। If you are not remembering the name, you have to write down only motor driver IC, but does not connect the motor directly to 8051। And this is the simple program for rotating the motor। This question may be asked for 4 marks or it may be asked for 6 marks along with program। 4 मार्क के लिए पूछा जाता है तो जनरली सिर्फ इंटरफेसिंग डायग्राम पूछते हैं या कभी कभी प्रोग्राम भी पूछ सकते हैं, लेकिन 6 मार्क के लिए पूछेंगे तो प्रोग्राम के साथ में आपको डायग्राम भी निकालनी होगी। Okay, and this is the program again। If you are going to see again, delay program is there। Okay, मोटर को क्या किया उन्होंने, ये जो पिन है, मोटर के 2 टर्मिनल्स रहते हैं, एक P1.0 को कनेक्ट किया, एक P1.1 को कनेक्ट कर दिया। सो अगर मैं इसको सप्लाई देता हूँ, ऐसे सप्लाई देता हूँ तो मोटर एक साइड रोटेट होती है, ये सप्लाई देता हूँ तो मोटर अलग साइड में रोटेट होगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द प्रोग्राम फॉर रोटेटिंग द मोटर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Now the next one is LCD, liquid crystal display। Okay, so LCD is very commonly used। Okay, अब LED और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के कुछ ड्रॉबैक्स है। क्या ड्रॉबैक्स है LED और 7 सेगमेंट के? LED डिस्प्ले ओनली शो द नंबर्स, 0 to 9 नंबर शो कर सकता है। उसके बाद में 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या कर सकता है, ओनली 0 to 9 नंबर शो कर सकता है। उसके बाद में कुछ कैरेक्टर जैसे B हो गया, D हो गया, C हो गया, ऐसे कुछ कैरेक्टर शो कर सकता है ओनली, बट इट कैनॉट डिस्प्ले शो द ऑल अल्फ़ाबेट्स। तो वो ड्रॉबैक है, वो ओवरकम करने के लिए हमने क्या लिया है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले विल शो द नंबर्स एज वेल एज अल्फ़ाबेट्स, ऑल द अल्फ़ाबेट्स अलॉन्ग विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। सो ये पूरा शो करता है। ओके, और उसमें क्या होता है कि एक LCD, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है ना, वो आपको एक ही कैरेक्टर शो कर सकता है, लेकिन एक LCD डिस्प्ले यू विल शो यू द मल्टीपल कैरेक्टर। सो अ 16:2 डिस्प्ले विल शो यू 32 कैरेक्टर्स। सो ये 16:2 अगर डिस्प्ले लेता हूँ मैं, सो उसका मतलब क्या है, उसमें दो रोज़ है। ओके, और उसमें 16 कॉलम है, 1 2 अप टू 16, ऐसे 16 कॉलम्स है। सो ये क्या करता है, this will show you one alphabet, this one show you this one character, this one show। so in total it will show you the 32 character। 16:2 का डिस्प्ले आपको टोटल 32 कैरेक्टर शो कर सकता है। 25:4 का डिस्प्ले अगर है तो वो 80 कैरेक्टर शो कर सकता है। ओके, सो दिस टू, द लेटर नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज एंड द फर्स्ट नंबर विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स ओवर देयर। ओके, सो जनरली LCD डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हैज़ 16 पिन, उसको 16 पिन्स रहती है। सो उसमें जो पहली 3 पिन रहती है वो सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है, VSS, VDD एंड VE, दीज आर यूज फॉर सप्लाई। देन नेक्स्ट पिन नंबर 4, 5 एंड 6, दिस कैन बी यूज टू सिलेक्ट द रजिस्टर। योर LCD हैज़ 2 रजिस्टर, कमांड रजिस्टर एंड डेटा रजिस्टर, उसको सिलेक्ट करने के लिए। रीड और राइट मोड सिलेक्ट करने के लिए पिन नंबर 5 और एनेबल डिस्प्ले करने के लिए पिन नंबर 6। उसके बाद में पिन नंबर 7 से पिन नंबर 14 ये डेटा,
एलसीडी को माइक्रो कंट्रोलर की तरफ से जो डिस्प्ले करना है वो डेटा सेंड करने के लिए जो पिन यूज़ की जाती है वो रहती है पिन नंबर 7 से पिन नंबर 14, और पिन नंबर 15 और 16 दीज आर अवेलेबल इन सम एलसीडी डिस्प्ले जिसमें बैकलाइट है। ओके, कुछ एलसीडी में कि बैकलाइट रहता है, कुछ एलसीडी में नहीं रहता है। बैकलाइट की वजह से आप अंधेरे में देख सकते हैं। सो बैकलाइट के लिए जो रहता है ना, उसके लिए पिन नंबर 15 और 16 यूज़ होती है। सो दिस इज़ द इंटरफेसिंग डायग्राम फॉर इंटरफेसिंग द एलसीडी डिस्प्ले विथ 8051। आप देखो यहाँ पे पिन नंबर 7 टू पिन नंबर 14 दीज आर कनेक्टेड टू द पोर्ट 2। ओके, पोर्ट 2 को कनेक्ट किए उन्होंने 8 पिंस। दिस इज़ योर 8-बिट डेटा बस। ओके, पिन नंबर 1 2 3 ये क्या किया उन्होंने, सप्लाई को कनेक्ट कर दी। पिन नंबर 4 5 6 कैन बी कनेक्टेड टू सम अदर पिंस। ओके, ये आप किसी भी पिन को कनेक्ट कर सकते हैं, 1 को कनेक्ट कर सकते हैं, 0 को कनेक्ट कर सकते हैं फॉर कंट्रोलिंग द फंक्शंस ऑफ एलसीडी डिस्प्ले, सिलेक्टिंग द रजिस्टर, रीड राइट फंक्शन एंड enabling the LCD display. Okay, so this is how you are going to connect. This is asked for 4 marks. Okay, generally this question is asked for 4 marks. Interfacing the LCD display with 8051 microcontroller. और 2 मार्क के लिए कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 4 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। स्टेट द फंक्शन ऑफ RS, EN and RW pins of LCD display. So RS is called as register select, and this is used to select the command register as well as data register and allow the user to send commands such as clear display, cursor at home and like that one. So if RS value is 1, if you are going to write the 1 to the RS pin, the data register is selected and the user can send the data to be displayed on the LCD. जो आपको डेटा डिस्प्ले करना है LCD पे, अगर वो सेंड करना है तो RS की वैल्यू 1 रखनी होगी। ओके, और RS की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो क्या करेंगे, आप कमांड सेंड करेंगे उस पर। ओके, दूसरी पिन जो है RW, रीड राइट। दिस पिन अलाउज द यूज़र टू राइट द इंफॉर्मेशन टू द LCD और रीड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। अब LCD के अंदर एक छोटी सी मेमोरी रहती है। ओके, सो उस पर आपने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस सेव करके रखी है, उसको रीड करना है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, और उसमें अगर राइट करना है तो उसकी वैल्यू 0। RW इज 0 फॉर राइटिंग पर्पज एंड RW इज 1 फॉर रीडिंग पर्पज। एंड एनेबल, ओके, एनेबल पिन इज used by the LCD to latch information presented to its data pins. When the data is supplied to the data pin, a high to low pulse must be applied to this in order for the LCD to latch the data presented at the data pins. जो आपने डेटा सेंड किया है ना LCD को, वो LCD में स्टोर होने के लिए, LCD में डिस्प्ले करने के लिए कम से कम 450 नैनो सेकंड तक उस पिन को हाई रखना गिरता है आपको। ओके, सो उसके बाद में दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड समटाइम्स इन द एग्जाम। ड्रॉ द इंटरफेसिंग ऑफ डायग्राम ऑफ LCD डिस्प्ले एंड state the process. Okay, initialization of LCD display. So what are the steps to just initialize or send the data on LCD display? So सबसे पहले initialize LCD, दूसरे में क्या करते हैं, sending command to the LCD, और तीसरे में writing data to the LCD। ये 3 स्टेप होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम LCD को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद में उसको कमांड देते हैं, उसके बाद में उसमें डेटा राइट करते हैं। अब इनिशियलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, इनिशियलाइजिंग LCD to 8051, the following instruction and commands to be embed into the function. So इनिशियलाइज में कुछ कमांड्स दी जाती है। सो पहली जो कमांड है 0x38, दिस कमांड इज यूज फॉर 8-बिट डेटा इनिशियलाइजेशन। जो आप डेटा सेंड कर रहे हैं वो 8-बिट डेटा है। 0FH, ओके, फॉर मेकिंग LCD ऑन एंड इनिशियलाइजिंग द कर्सर। अब LCD डिस्प्ले को ऑन करना है, इसके लिए आपको कौन सी इंस्ट्रक्शन है, 0FH। 06H फॉर इंक्रीमेंटिंग द कर्सर विच विल हेल्प द डिस्प्ले टू डिस्प्ले अनदर कैरेक्टर्स ऑन द LCD। अब 06 की क्या वजह से क्या होगा, जो कर्सर है वो अगली पोजीशन पे जाएगा। 01 फॉर क्लियरिंग द LCD। अब LCD का डिस्प्ले जो है मुझे क्लियर करना है तो उसके लिए 01 लिखना होगा। सेंडिंग डेटा, अब डेटा कैसे सेंड किया जाता है, E इज इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले क्या करना होगा, इनेबल पिन की वैल्यू 1 करनी होगी, रजिस्टर सिलेक्ट की वैल्यू क्या करनी होगी, 1 करनी होगी,
प्लेसिंग द डेटा ऑन द डेटा रजिस्टर। ओके, अब इसकी वजह से क्या हो गया, आपने डेटा सेंड कर दिया अभी। ओके, डेटा सेंड के लिए ई की वैल्यू 1 चाहिए, आर एस की वैल्यू 1 चाहिए। ओके, उसके बाद में जो डेटा है उसको डेटा पिन पे आपको सेंड करना है। आर डब्ल्यू, रीड राइट फंक्शन शुड बी लो फॉर राइटिंग द डेटा। ओके, द प्रोग्राम गिवन बिलो विल यूज द फंक्शंस। सो दिस इज बेसिकली अ प्रोग्राम। उसके बाद में आता है स्टेपर मोटर। इज इट क्लियर? एलसीडी का क्लियर हो गया आदित्य? Yes. Okay. Now, the next is your stepper motor. There is a difference between DC motor and stepper motor. DC motor will run on DC supply. Okay. Stepper motor will run on pulses. So stepper motor use electrical or used to translate electrical pulses into mechanical movement. अब यहाँ पे आप word देखो. What is the word electrical pulses to the mechanical movement? Okay, so stepper motor does not require AC supply or DC supply. It required electrical pulses for its operation. In some disk drive, it is used in the disk drive, dot matrix printer, okay, and different robots and all these things. The main advantage of this motor is the position control. Precise position control अगर करनी है ना आपको, तो you have to use stepper motor. Stepper motors are generally have permanent magnet and it's surrounded by the stator. उसमें दो तीन डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वह फर्स्ट वन इज योर स्टेप एंगल। स्टेप एंगल इज द एंगल इन विच द रोटर मूव्स व्हेन वन पल्स इज अप्लाइड एज एन इनपुट टू द स्टेटर। ओके, सो सबसे पहला क्या है स्टेप एंगल। स्टेप एंगल इज द एंगल इन विच द रोटर मूव्स when one pulse is applied as a input to the stator. This parameter is used to determine the positioning of the stepper motor. So ये अगर मोटर है, नॉर्मल मोटर जो रहती है ना, इसको जब आप सप्लाई देते हैं तो ये पूरे 360 डिग्री में रोटेट होती है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर से यहाँ पे आ गई, ये 360 डिग्री हो गया। लेकिन स्टेपर मोटर को जब आप सप्लाई देते हैं ना, सो ये 360 डिग्री में रोटेट नहीं होती है। दिस विल रोटेट थ्रू सर्टन एंगल ओनली। ओके, सो जितने एंगल से वो रोटेट हो गई, अगर 90 डिग्री के एंगल से रोटेट हो गई तो स्टेप एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर 45 डिग्री से रोटेट होती है एक सप्लाई, एक पल्स देने के बाद में, तो उसका स्टेप एंगल हो गया 45 डिग्री। ओके, सो द मिनिमम स्टेप एंगल विच इज़ जनरली 1.8 डिग्री। ओके, सो ये होता है स्टेप एंगल। यानी आपने जो पल्स दिया, उस पल्स देने के बाद में मोटर कितने एंगल में से रोटेट हो रही है उसको बोलते हैं स्टेप एंगल। Okay, and step per revolutions. This is the number of steps required to complete one revolution. अगर मेरा 90 डिग्री, अगर मैं एक स्टेप देता हूँ, एक पल्स देता हूँ, तो मोटर कहाँ से रोटेट हो रही है? 90 डिग्री में रोटेट हो रही है। दिस इज़ 90 डिग्री। इनिशियल पोजीशन ये थी 0, अब 90 डिग्री में रोटेट हो रही है। ये फर्स्ट पल्स पे। दूसरा पल्स दिया, फिर से 90 डिग्री में रोटेट हो गई। तीसरा पल्स दिया, फिर से 90 डिग्री में रोटेट हो गई। चौथा पल्स दिया, फिर से 90 डिग्री में रोटेट हो गई। सो ये पूरा हो गया 360 डिग्री। यानी उसको एक रिवोल्यूशन मीन्स 360 डिग्री, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो पोजीशन एंड अगेन कमिंग टू द जीरो पोजीशन इज कॉल्ड एज वन रिवोल्यूशन। ओके, सो एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए मेरा अगर स्टेप एंगल 90 डिग्री है तो कितना पल्स लगता है? सो 360 डिवाइडेड बाय स्टेप एंगल इज इक्वल टू 4 पल्स। सो 4 स्टेप लगेंगे। स्टेप्स, ओके, सो स्टेप रिक्वायर्ड आर 4। ओके, सो दिस इज द फार्मूला। स्टेप्स पर रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय स्टेप एंगल। समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 2 मार्क्स। ओके, what is step angle or what is the step per revolution and calculate the step per revolution for certain angle. So उसमें क्या करना है, सिर्फ जो स्टेप एंगल दिया होगा ना उसको उससे 360 को डिवाइड करना है। ओके, अगर मेरा स्टेप एंगल है 90 डिग्री, सो आई विल डिवाइडेड बाय 90। मेरा स्टेप एंगल है 45 डिग्री, सो आई विल डिवाइडेड बाय 45। ओके, मेरा स्टेप एंगल है 36 डिग्री, सो आई विल डिवाइडेड बाय 36। ओके, so these are the steps required to complete one revolution. And this is the question which is asked in the exam, 4 marks के लिए. Okay, draw the interfacing diagram of stepper motor with 8051 microcontroller. Again,
the stepper motor is not directly connected to the 8051 because whether it is a AC motor or DC motor or stepper motor or servo motor, the motor requires large current initially, and my microcontroller will supply only 10 milliampere of current. Okay, so motor is never directly connected to the microcontroller. You have to connect some driver IC in between that two. So here I am going to use ULN 2003 over here. Okay, this motor has 4 winding, 1 2 3 and 4. If you are going to see, my normal motor has only 2 windings, but stepper motor has 4 winding. Okay, and based on that the motor is going to rotate over here. If you are going to see, you can see the animation. The motor is not directly rotating, it will rotate through certain angle only. Okay, so that's why it is called a stepper motor. So this is the interfacing diagram, and this question is generally asked in the exam for 4 marks. Draw the interfacing diagram of a stepper motor with 8051 microcontroller. And this is the program for the same. If the program is asked, then the question for 6 mark. 3 मार्क के लिए इंटरफेसिंग डायग्राम, 3 मार्क के लिए प्रोग्राम. अब प्रोग्राम भी देखेंगे तो आप हर प्रोग्राम में क्या दिख रहा है आपको, डिले का प्रोग्राम कॉमन है. क्या कर रहे हैं आप लोग, उसको एक कोड सेंड कर रहे हैं. ओके, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और फेज़ 4. अब ये कोड कैसे फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक टेबल है. ओके, सो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम क्या करता है, स्टेपर मोटर को ऐसे रोटेट कर रहा है. द मोटर इज नाउ रोटेटिंग विथ सर्टन एंगल. ओके, so here move a comma initial, I have initialized the port, then I have certain value on this one, and that causes the rotation of my motor through certain angle, and after each data I have calling the delay over here. Now the stepper motor can be operated in 3 mode. stepper motor को 3 मोड में ऑपरेट किया जाता है. एक है वेव ड्राइव मोड, एक है हाफ मोड और एक है फुल मोड. सो वेव ड्राइव मोड में क्या होता है, इन दिस मोड one coil is energized at a time, so all 4 coils are energized one after another. So as we have discussed, stepper motor में कितनी coils रहती है, 4 coil है, 1 2 3 4. ओके, ये 4 coil है. तो आप क्या कर रहे हैं, एक टाइम पे एक ही coil energize कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वेव डाउन मोड. एक साथ में एक ही coil energize होगी, तो कौन सा वेव मोड गया होगा आपका, दिस इज वेव डाउन मोड. ओके, so for wave down mode, initially I am energizing only winding 1, then winding 2, then winding 3 and winding 4. Okay, so this is wave down mode. This mode produce less torque than full step mode. इसमें ये क्या रहता है कि टॉर्क थोड़ा कम रहता है. दूसरा जो मोड है फुल ड्राइव मोड, उसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉइल एक साथ एनर्जाइज करते हैं. ओके, एंड दिस प्रोड्यूसेस मोर टॉर्क. सो यहाँ पे ए और बी एक साथ एनर्जाइज की, उसके बाद में बी और सी एनर्जाइज की, उसके बाद में सी और डी एनर्जाइज की, और उसके बाद में ए और डी एनर्जाइज की. सो ये हो गया आपका फुल ड्राइव मोड. एंड देन थर्ड मोड इज योर हाफ ड्राइव मोड. एंड फॉर कनेक्टिंग द योर स्टेपर मोटर विथ 8051 यू आर गोइंग टू यूज ULN 2003 in between stepper motor and the 8051 microcontroller. अब हाफ ड्राइव मोड में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले एक वाइंडिंग एनर्जाइज करते हैं, बाद में 2, फिर बाद में 1, उसके बाद में अगेन 2 वाइंडिंग, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2 वाइंडिंग, उसके बाद में 1 और उसके बाद में 2 वाइंडिंग, अल्टरनेट. ओके, अल्टरनेटली वी आर गोइंग टू एनर्जाइज 1 वाइंडिंग एंड देन 2 वाइंडिंग्स. ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन इट इंक्रीजेज द एंगुलर रोटेशन ऑफ मोटर. इसकी वजह से क्या होता है कि एंगुलर रोटेशन का स्पीड बढ़ जाता है मोटर का. The next is interfacing the keypad with 8051 microcontroller. So आप लोगों ने ऐसे देखा होगा काफ़ी बार, this is the keypad. So इस keypad को अगर ये करना है तो इसको कैसे इंटरफेस किया जाता है, इसमें लगभग रोज रहते हैं and then there are columns. Okay, so depending on if your 3x3 matrix is there, then it has 3 rows and 3 column. 4x4 है तो 4 रो और 4 कॉलम होगी. सो ये हो गया इसकी इंटरफेसिंग डायग्राम. दिस डायग्राम इज आस्क इन द एग्जाम फॉर 4 मार्क्स. ओके, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम ऑफ कीपैड विथ 8051 माइक्रो कंट्रोलर. यू कैन डायरेक्टली ड्रॉ दिस डायग्राम फॉर 4 मार्क्स. इसमें सिर्फ क्या करना है कि एक पोर्ट है उसको आउट करना है और दूसरे पोर्ट को क्या करना है आपको इन करना है. सो यू शुड बी जस्ट
you have to remember the direction of arrow. इनपुट पोर्ट जो है ना बता रहे हैं आप, उसके अंदर एरो जानी चाहिए और आउटपुट पोर्ट से एरो बाहर की तरफ आनी चाहिए. ओके, just you have to remember this thing only. Okay, and then you have to just connect this one. Now, how the key press is detected? If this diagram is asked, draw the interfacing diagram, then you have to draw this only. But sometimes the question may be, draw the interfacing of diagram for connecting the interfacing 3x3 or 4x4 keypad with 8051 and write down the procedure for detecting the key press. So there is a procedure for this one. ओके, ये तो आपकी डायग्राम हो गई इंटरफेसिंग डायग्राम. ओके, इन विच यू हैव कनेक्टेड द rows to certain 4 pins and then columns to other 4 pins of 8051. Okay, and if you want to see which key is pressed, then you have connected the display over here. Okay, so sometimes the question may be like that. This question may be for 6 mark. Draw the interfacing diagram for interfacing the keypad and LCD display to show which key is pressed. So for that purpose you have to draw this diagram. This question may be for 6 mark. Now here the rows are connected to the output port and columns are connected to the input ports. अब क्या कहते हैं, तो ये दिस इज द प्रोसीजर फॉर दिस वन. जितने भी रोज है, रो कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, आउटपुट को, और कॉलम कहाँ कनेक्ट करने हैं, इनपुट को. To detect the press key, the microcontroller ground all rows by providing 0 to the output latch. Okay, अब की कौन सी प्रेस है ये कैसे डिटेक्ट करेगा. सो क्या करेगा, पहले ऑल रोज को क्या कर देगा, वो 0 से कनेक्ट करेगा. ओके, टू द आउटपुट लैच एंड रीड द कॉलम्स. 0 से कनेक्ट करेगा और सिर्फ कॉलम रीड करेगा. अगर 0 से कनेक्ट कर देता है ना, तो कॉलम अगर रीड करता है, तो अगर ये की प्रेस हो गई तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. If the data reads from the column is D23D is 11, no key press is detected and the process continue till the key press is detected. Okay, अगर कोई की प्रेस ही नहीं है तो सबकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1111. लेकिन अगर कोई की प्रेस हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. However, if one of the column bit has 0, this means the key press has occurred. किसी की भी वैल्यू अगर 0 होती है तो क्या हो गया, कोई तो भी की प्रेस हो गई है. Okay, for example, if D3 to D0 reads 111101 means क्या हो गया, अभी ये जो कॉलम है यहाँ पे कोई तो भी की प्रेस हो गई. D1 कॉलम में कोई तो भी की प्रेस हो गई है. सो इन D1 कॉलम द की इज गोइंग टू बी प्रेस और हैज़ प्रेस. आफ्टर की प्रेस डिटेक्टेड, माइक्रो कंट्रोलर विल गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द की. अब उसने तो ये पता कर लिया कि कोई तो भी की प्रेस हो गई है, लेकिन कहाँ पर हुई है वो अभी डिटेक्ट करना बाकी है. तो उसके बाद में वो क्या करता है, स्टार्टिंग विद द टॉप रो, सबसे पहला जो रो है उसको पहले वो 0 करता है. ओके, और उसके बाद में सब कॉलम रीड करता है. सो इसको 0 करने के बाद में कॉलम रीड करेगा तो उसमें क्या हो रहा है, 1111, क्योंकि इस कॉलम में तो की प्रेस ही नहीं है, इसलिए क्या आ गया मेरा 1111. उसके बाद में क्या करेगा, ये तो नहीं है वहाँ पे, फिर वो दूसरे कॉलम को 0 करेगा, दूसरे रो को 0 करेगा, यहाँ पे 0 करेगा और फिर से रीड करेगा, फिर इसको 0 करेगा, फिर से रीड करेगा. जब तक उसको की प्रेस डिटेक्ट नहीं होती है वो प्रोसेस रिपीट करते रहेगा. जिस कॉलम में की प्रेस हो गई है ना, उस पर्टिकुलर रो को वो क्या करता है, फिर डिटेक्ट करता है. इफ द डेटा रीड्स इज ऑल वंस नो की इन दैट रो इज एक्टिवेटेड एंड प्रोसेस विल मूव टू द नेक्स्ट रो. It ground the next row and reads the column and check for any 0. This process continue until the row is identified. After identification of the row in which the key has been pressed, the next task is to find out the column to which the keys belong. Okay, so this is the simple procedure by which it can detect the key press. So basically all of you are familiar with the matrices. So matrix में कैसे रहता है, R. So ये जो नंबर है ना 1 2 3, ये क्या रहता है आपका, इट विल रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कॉलम एंड सी. ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. दिस इज रो 1 एंड रो 2 एंड दिस इज रो 3. सो दिस नंबर हैज़ द पोजिशन R1C1, R1C2, R1C3, R2C1, R2C2, R2
C3 like that one. ओके, सो इट हैज़ इज यूनिक एड्रेस. वैसे ये क्या करता है, जहाँ पे की प्रेस हो गई ना उसका एक एड्रेस है, उस एड्रेस को भेज देगा और वहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम लिखा है कि उस एड्रेस पे क्या है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, बाद में उसको कॉल कर देता है. सो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, स्क्वायर वेव जनरेशन यूजिंग पोर्ट पिन्स इन 8051. सो दिस इज़ द वेरी सिंपल डायग्राम, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर ईयर. ये 4 मार्क के लिए पूछी जाती है. इसमें सिर्फ 8051 कनेक्ट करना है और उसमें कोई भी एक पोर्ट पे एक आपको सिर्फ डिस्प्ले कनेक्ट करना है और उसमें स्क्वायर वेव शो करनी है. एंड दिस इज़ योर CRO और ऑसिलोस्कोप, सम सॉर्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप इज़ देयर. तो इसके लिए जो प्रोग्राम है वो है, दिस इज द प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग द स्क्वायर वेव ऑन 8051. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स. ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस. ओके, सो इसमें सिर्फ एक ऑसिलोस्कोप एक पिन से कनेक्ट करना है, उतना ही प्रोग्राम है, इतना ही इंटरफेसिंग डायग्राम है. बट दिस मे गेट कन्फ्यूज समटाइम, स्टूडेंट मे गेट कन्फ्यूज इन दिस वन. उसमें क्या कर दिया आपने, एक सेट बीट कर दिया पिन 2.0 को, यहाँ पे मैंने 2.0 को कनेक्ट किया है, उसको कर दिया 0. उसके बाद में उसको कॉम्प्लीमेंट किया, यानी वहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, सॉरी यहाँ पे उसको सेट बीट किया यानी इसकी वैल्यू 1 कर दी, यहाँ पे उसकी वैल्यू 0 हो गई. ओके, कुछ देर के लिए 1 है, कुछ देर के लिए 0 है. कुछ देर के लिए 1 है तो यहाँ पे आपको ऐसे मिलेगा, कुछ देर के लिए 0 है तो आपको ऐसे मिलेगा 1 0 1 0. सो this is 1 for sometimes, 0 for sometimes, 1 for sometimes, 0 for sometimes. So this is how you will get the square wave and this delay will depend on this one. Okay, ये जो प्रोग्राम है वो डिले का प्रोग्राम है. सो इस टाइम डिले के हिसाब से वो आपको जनरेट कर देगा. यानी सिंपली क्या किया आप लोगों ने, लॉजिक क्या है इसका, पिन को थोड़ी देर के लिए ऑन रखो, थोड़ी देर के लिए ऑफ रखो. अगर आप उसको 2 सेकंड के लिए ऑन रख रहे, 2 सेकंड के लिए ऑफ रख रहे, so you are getting such type of waveform and that is your square wave. Okay, and if you want to generate the rectangular wave, so on time should be greater than off time. on time हो गया 2 सेकंड, off time हो गया 1 सेकंड. सो आपको ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई रेक्टेंगुलर वेव. ओके, सो अलग अलग वेव्स जनरेट करने के लिए अलग अलग टाइम पैटर्न सिर्फ प्रोग्राम में चेंज करना है वहाँ पे. So this question is for 4 marks or 6 mark. Water level controller. So इसके प्रोग्राम तो नहीं पूछा जाता है जनरली, सिंपली ये द डायग्राम इज गोइंग टू बी आस्क्ड ओवर हियर. एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपको 2-3 पॉइंट्स रखने हैं. सो दिस इज़ अ कंटेनर, दिस इज़ योर लो लेवल, मीडियम लेवल एंड हाई लेवल. ओके, सो ये कंटेनर हो गया, ये लेवल्स हो गई आपकी. and these are your inputs to the microcontroller. so microcontroller की जो पिन है, पिन नंबर 1.0, पिन नंबर 1.1, पिन नंबर 1.2 को इनपुट गए. इतना भी प्रोग्राम अगर ये कर लेते हैं तो दिस इज़ योर वाटर लेवल कंट्रोलर टू 8051 माइक्रो कंट्रोलर. यहाँ पे ही उन्होंने सेम बताया, सिर्फ उसके साथ में उन्होंने ट्रांजिस्टर लगा दिए. यहाँ पे दे आर कनेक्टेड द ट्रांजिस्टर ओवर ईयर. ओके, सो दैट द पर्टिकुलर इनपुट इज गोइंग टू बी डिटेक्टेड बाय द 8051. Here they have used 4 levels: quarter level, half level, 3/4 level and full level. Okay, means 25%, 50%, 75% and 100%. Okay, and based on that there is one output. So these are your inputs and this is your output. If the water tank is empty, then you have to start the motor so that the water is going to be filled in the tank, and this is the algorithm for that one. For this most of the time the question program is not asked, instead of they will ask you the algorithm. So सबसे पहले क्या करेंगे आप, जितने भी लेवल आप डिटेक्ट करना चाहते हैं, लो मीडियम हाई, या उसको कॉन्फ़िगर करेंगे इनपुट. ओके, एंड एक मोटर को कॉन्फ़िगर करेंगे आउटपुट. देन इनिशियलाइज द LCD. उसके बाद में क्या करेंगे आप लोग, जो LCD डिस्प्ले है जो आपको बता रहा है ओके कि वेदर द टैंक इज फील्ड और नॉट, उसको इनिशियलाइज करेंगे. इफ ऑल पिन्स आर लो, डिस्प्ले टैंक विल शो एम्प्टी एंड स्टार्ट द मोटर. ओके, अगर पानी पूरा भर जाता है तो डिस्प्ले टैंक विल शो फील्ड. ओके, एंड इट विल स्टॉप द थिंग. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स, लॉजिक बिहाइंड दिस प्रोग्राम. सो दिस
diagram may be asked for 4 marks or 6 mark. And this is the traffic light. Generally all of you are familiar with the traffic lights. So basically what happen in some signals, okay, जहाँ पे क्या होता है, सिग्नल जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहती है. सो जनरली 3 ट्रैफिक लाइट रहते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन. सो व्हेन रेड लाइट इज ऑन, एट दैट टाइम द ट्रैफिक इज स्टॉप. व्हेन ग्रीन लाइन इज ऑन, द ट्रैफिक विल मूव. सो यू वांट टू डिज़ाइन दैट वन. सो दिस इज सिंपल डिस्प्ले फॉर दैट वन. आपको क्या करना है, 3 एलईडी कनेक्ट करने हैं तीन एलईडी कनेक्ट करने हैं 8051 के साथ में. सो दिस इज माई 8051 माइक्रो कंट्रोलर. And to that 8051 I have connected 3 LEDs, red LED, yellow LED and green LED. Okay, and to show I have connected one 7 segment display over here. So this is simple interfacing diagram of traffic light control. Okay, traffic light control में सिर्फ आपको 3 LED कनेक्ट करने हैं and then you have to just connect one display for showing what is the time and all these things. This is a simple diagram. And this is the second in which the 4 LEDs, 12 LEDs are there. One means this is just like this one, a square from this side, this side, this side and this side the traffic is coming. But generally you have to draw this diagram. This is the simple diagram for 4 marks. Okay, आप लोग इसी डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ये 4 मार्क के लिए डायग्राम पूछी जाती है. सिर्फ आपको क्या लिखना है, एलईडी के ऊपर नाम लिखना है, रेड एलईडी, येलो एलईडी एंड green LED. Now the summary of this chapter, this is very important. Okay, all of you are there. झोपले का कोणी, सर्व झोपलेत का? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir, झोपले. Now this is the summary. Please remember, this is very very important. Okay, in nutshell what you have discussed so far. चॅप्टर नंबर 5चे रिव्हिजनमध्ये आपण जे आता 5 मिनिट बघणार आहे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. स्कोरिंग, दिस इज अ स्कोरिंग चॅप्टर. हे जी डायग्राम दिसते ना तुम्हाला, ही कॉमन डायग्राम आहे. वॉट एव्हर इज कास्ट, सो दिस इज कॉमन. दिस इज 8051 मायक्रो कंट्रोलर. कुठली जरी डायग्राम विचारले, इंटरफेसिंग ऑफ 8051 LED टू 8051, यू हॅव टू ड्रॉ दिस. 7 सेगमेंट विचारलं तरी हे ड्रॉ करायचं आहे. रिले विचारलं तरी हे ड्रॉ करायचं आहे. DC मोटर विचारलं, स्टेपर मोटर विचारलं आहे, ट्रॅफिक लाईट असेल, वॉटर लेवल कंट्रोलर, काही जरी विचारलं तरी एवढं पोर्शन तुम्हाला ड्रॉ करायचं आहे. ओके, आता पुढे काय, फक्त काय, स्क्वेअर वेव्ह जनरेटर, ॲड वन इंडिकेटर, स्क्वेअर वेव्ह इंडिकेटर. ओके, स्क्वेअर वेव्ह, ड्रॉ द इंटरफेसिंग डायग्राम फॉर स्क्वेअर वेव्ह विथ 8051. फक्त हे ड्रॉ करायचं त्याच्या कुठल्या तरी एका पिनला. LED असेल, एक LED कनेक्ट करून द्यायचं 80. दिस डायग्राम इज कॉमन. दिस इज अ कॉमन डायग्राम. ओके, रिले विचारला असेल, रिले ड्रॉ करा. ओके, एवढं ड्रॉ केलं, तुमची रिलेची डायग्राम झाली. कीपॅड विचारलं असेल, कनेक्ट इट टू द 4 पिन्स अँड 4 पिन्स. इनपुटच्या 4 पिन, आउटपुटच्या 4 पिनला कनेक्ट करा. DC मोटर विचारलं असेल, यू कॅन गो फॉर दिस वन. इज इट क्लिअर? Is it clear? Yes, sir. This Yes, is sir. basic. चॅप्टर नंबर 5 मध्ये ही डायग्राम कॉमन आहे. ही डायग्राम तुम्ही प्रत्येकाला ड्रॉ करू शकता त्याच्यामध्ये. ओके, 12 नंबर, द वेटेज फॉर दिस चॅप्टर इज 12 मार्क्स. क्वेश्चन आस्क फॉर 18 मार्क्स. व्हॉट आर द क्वेश्चन्स? इंटरफेसिंग ऑफ LED, LCD, 7 सेगमेंट, मोटर, रिले, ट्रॅफिक लाईट. ओके, अँड मोटर मे बी युअर DC और स्टेपर. फक्त एवढे क्वेश्चन्स आहेत. या व्यतिरिक्त क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये येत नाहीत. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला फक्त डायग्राम्स आहे. त्या डायग्राममधला 50% पोर्शन हा आहे. ओके, सो एवढा जरी तुम्ही ड्रॉ केला तरी तुम्ही कमीत कमी पुढचं इझिली ड्रॉ करू शकता. सो यू हॅव टू जस्ट प्रॅक्टिस दिस वन. ओके, आणि 12 मार्कांपैकी तुम्हाला कमीत कमी 10 मार्क्स तर इझिली मिळू शकतात याच्यामध्ये मिनिमम, फक्त इंटरफेसिंगला आणि प्रोग्रामिंगला. आपण प्रोग्राम जरी स्किप केला, कारण प्रत्येक इंटरफेसिंगला प्रोग्राम विचारत नाही. एखाद्या इंटरफेसिंगला प्रोग्राम विचारता, दॅट क्वेश्चन यू मे स्किप बिकॉज 18 मार्क्स आर देअर अलॉंग विथ ऑप्शन्स. ओके,
So square wave, LED, relay, then what is this? काय आहे? वेदांत, this is keypad interfacing, DC motor and stepper motor. So this is all about the revision of your chapter number 5.